جی بالکل ہمارے ساتھ یقیناً اس وقت آج وقت کی تھوڑی سی کمی کا سلسلہ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ جمعۃ الوداع بھی ہے، بالکل جمعہ مبارک ہے، آخری جمعہ ہے، تو ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور ہماری کیونکہ ٹیم کا حصہ ہے اور آج ہم وطن عزیز کے لیے بہت جذباتی ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ الحمدللہ۔ دیکھ ہی رہے ہوں گے جھنڈے بھی ہیں، ہم بھی کچھ اسی طرح کے رنگ اور یہ سب لگائے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آزادی ہم اس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور اس ماں کے لیے کہ جس کو ہم دھرتی ماں کہتے ہیں، ہم نے اپنے والدین کے لیے بہت بات کی، ہم نے اپنی ماں کے لیے بہت بات کی، ہم اپنی اس وطن عزیز کے لیے ہم کیا پیغام لوگوں کو ایک ایسا دینا چاہیں، کوئی ایسی بات کرنا چاہیں جس سے لوگوں کے دل جو ہے وہ گرم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت شکریہ۔ علی حیدر، غلام علی، محمد علی، غلام نبی، نبی بخش، یہ سبحان سارے اللہ، نام بڑے خوبصورت ہیں، بالکل بڑے اچھے نام ہیں، اسلامی نام ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی آپ بات کریں گے، آج جمعۃ الوداع ہے، یہی 27ویں شب کو پاکستان وجود میں آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان رات تھی، میرے آبا و اجداد بتاتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان چل رہا تھا، خبریں آ رہی تھی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہاں، یہ آزادی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑی اگر ہجرت کو ہم دیکھیں تو وہ یہ پاکستان کی ہجرت جو ہندوستان سے لوگ کر کے اس کے اندر داخل ہوئے، اور سب سے بڑی قربانی جو اس ملک کے لیے ہمارے مسلمانوں نے دی، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، اب یہ ہمیں پاکستان ملا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس وطن عزیز کی عزت کریں، اس سے پیار رکھیں، اور اس سے ایسا پیار رکھیں جیسے ہم اپنے گھر کی فیملی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنے گھر کے ساتھ چار دیواری کے ساتھ پیار رکھتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کریں، اور بالکل حکم بھی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میری نعمتوں پر شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ اگر تم نے میری نعمتوں پہ ناشکری کی تو یہ کفران نعمت ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ برائیاں پیدا کی جائیں، جہاں رشوت ہو، جہاں معاملات خراب ہوں، یقیناً وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آج قبلہ اول کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھ لو، بیت المقدس کو دیکھ لو، کیا کیا کرتے تھے لوگ، کہاں سے اٹھتے وہاں جاتے برائیاں کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی ہیں۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر روتے پھر رہے ہیں، دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، وہ دھرتی وہ وطن لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ نعمتیں دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری قوم من حیث قوم، ہم کسی زمانے میں علی بھائی ایک قوم تھے، ملک نہیں بالکل تھا۔ بالکل آج ہمارے پاس ملک ہے مگر ہم قوم ایک نہیں ہیں، بالکل ایک ہجوم ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایک قوم بن جائیں، فرقہ واریت کو ختم کر کے، ذات و پات کو ختم کر کے، رنگ و نسل کو ختم کر کے اگر ہم آج بھی ایک قوم بن جائیں تو پاکستان الحمدللہ پہلے ہی سپر طاقت ہے، سپر پاور میں ہیں، یعنی ایٹمی طاقت میں ہم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اسلام کا یہ قلعہ بن جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا پاکستان۔ سبحان بہت اللہ، خوبصورت سبحان بات اللہ، کی ہے۔ سبحان میں اللہ۔ علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ صفائی نفس ایمان ہے، یہ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے، لیکن ابھی ہم کچھ ہی سیگمنٹس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اوبویسلی ہر شہر نہیں، جیسے کراچی میں آپ کو بہت ساری جگہیں ایسی دکھ جاتی ہیں، دیگر شہروں میں ایسی جگہیں دکھتی ہیں جدھر کچرا بہت زیادہ ہے، لوگ گھروں کے باہر کچرا پھینک رہے ہیں، کوئی خالی پلاٹ ہے تو وہاں گرینری نہیں دکھے گی، وہاں کچرا دکھے گا۔ اگر ہم یورپ کی بات کریں یا دوسرے ممالک کی بات کریں جہاں غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں آپ کو زیادہ صفائی نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنے ملک کی طرف، کیا یہ بھی منافقت میں آتا ہے؟ کیونکہ آپ بول کچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ صفائی نفس ایمان ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ صاف نہیں رکھ رہے اپنے ملک کو، لیکن باہر جب آپ جاتے ہیں آپ صفائی بھی رکھتے ہیں، آپ کوئی رول بھی نہیں بریک کرتے، تو کیا یہ منافقت میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج یہ قومی پرچم دیکھ کر بہت خوش ہوں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ 27ویں شب کو پاکستان مارد وجود میں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شب قدر میں پاکستان مارد وجود میں آیا ہو، اس ملک کی طرف
कोई भी मैली आंख से नहीं देख नहीं देख सकता। सकता। जो बिल्कुल। इस मुल्क को मैली आंख से या मैली सोच से सोचेगा गलत नज़रिए से, तो उसका अपना ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि इस परचम की जो एक निस्बत है सब्ज़ रंग की, वो गुंबद खिजरा से है। सुभान अल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद से बहुत इस खूबसूरत। रंग की निस्बत है। और फिर हमारे पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो नज़रिया है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पर ये पाकिस्तान मारद वजूद में आया। और इस मुल्क में हमें सफाई का हद से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। और फिर मेरी बेटी ने फरमाया कि निस्फ ईमान है सफाई, तो भाई जब ये निस्फ ईमान है तो कुल्ली ईमान इसको बना लो। अपनी ज़बान की सफाई रखो, अपने कानों की सफाई रखो, अपनी आँखों की सफाई रखो, अपने हाथों की सफाई रखो, अपने पैरों की सफाई रखो, अपने दिल की सफाई रखो। हमारे हाथों, हमारी आँखों, हमारे कानों के नज़दीक भी अली भाई कचरे के ढेर हैं। चुगली का ढेर है, झूठ का ढेर है, वाकई। बुग़्ज़ का ढेर है, मुनाफ़क़त का हमारे अंदर ढेर है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैं उस तरफ भी आना चाहता हूँ। ये मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान बहुत बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। कई ख़ानदान, कई कबीले इस पर कुर्बान हुए हैं। खून की नदियाँ बह गई हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में यकजहती, मोहब्बत, भाईचारे की फ़ज़ा को हद से ज़्यादा कायम करना चाहिए। फ़िरका वरीयत का बुत जो है उसको पाश करना चाहिए। ईद उल फितर करीब है। ये ईद उल फितर की नमाज पढ़ने से पहले हुक्म है, हदीस में है कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले अपनी अजीज़ और रिश्तेदारों, कराबादारों के पास जाएं, उनको गले मिलें। अगर कोई नाराज़ है तो उसको राज़ी करने की कोशिश करें। जो सबसे पहले खुद कदम उठाएगा राज़ी करने में, बहिश्त के दरवाजे पे आका सरकार उसका इस्तकबाल करेंगे। और सफाई के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि दूसरे ममालिक में जो सफाई के असबाब हैं, उनमें जो आवाम हैं, उनका भी अपना किरदार है। उनका अपना किरदार यूँ है कि वो अपने मुल्क को, अपने शहर को खूबसूरत रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो कचरा गली में नहीं फेंकते, वो कचरा बाज़ार में नहीं फेंकते। उनको मालूम है कि यह हमारा मुल्क है, इस कचरे से बीमारियाँ पैदा होती हैं। हमारे मुल्क की सूरत हाल तो ये है कि हम खुद अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, अपने हमसाए के साथ मुखलिस नहीं हैं। अपना कचरा गली में फेंक देते हैं, अपना कचरा उठाया रोड पे फेंक दिया। मार्केट से गुजरे, किसी बाजार से गुजरे तो सब्जी वाला है या फ्रूट वाला है, तो उसने जो भी कचरा उठाया होता है वो फुटपाथ पे आके रख देता है। और फिर अदारे तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेट आते हैं, जल्दी आते हैं, हो जाती है उनको भी देर अदारों को काम करने के हवाले से। मगर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपना किरदार हमें सफाई के हवाले से, सफाई के हवाले मोहब्बत से, के हवाले से, अखुवत के हवाले से, भाईचारे के हवाले से। भाईचारे के हवाले से मेरा ये ख्याल है ना, हम लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं। आज हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे। मुफ्ती साहब आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। मुझे लगता है हमें अपने गिरेबानों में झांकने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम कभी सिंधी पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हम महाजिर पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हम पंजाबी पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हम बलोची पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हम पठान पाकिस्तानी हो जाते हैं। हम नहीं हो रहे वो एक पाकिस्तानी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी अपनी एक सोच होती है, जहाँ से आप आए हुए होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी तरह मैं ये देखता हूँ, मैं तो पूरे यहाँ पे माशाल्लाह से इतने दिन गुजारे हैं, मैंने जब भी देखा है उलमा कराम की मोहब्बत आपस में इतनी एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम के साथ, अपने इख्तिलाफात अपनी जगह है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या हमें ज़रूरत है कि आज के दौर में हम अच्छा पैगाम पहुंचाएं, जो हमारी नफरतें हैं उनको हम थोड़ा सा दूर कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आज हमारे पास रोज़ा खुशाई के बच्चे बहुत सारे हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे हाथ खड़ा करके किस किस से सहरी में पराठा खाया है। वाह वाह वाह। और किस किस ने अंडा खाया है? माशाल्लाह सब बच्चों ने लोडेड सहरी की है। और इनके वालिदैन को हम बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों का ये इतना अहम दिन है, पहली दफ़ा रोज़ा रखा है। अल्लाह से दुआ है कि इन बच्चों का रोज़ा कबूल फरमाए और इन बच्चों को और भी हिम्मत मिले, ताकत मिले कि आगे भी रोज़े इख्तियार करें। जी अली भाई।
जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। इस वजह से डेटॉल को हम हमेशा आपके सामने आपको याद दिलाते हैं, आपको बावर कराते हैं और अपने वतन अज़ीज़ को भी इसी तरह बिल्कुल क्लीन करें, ख़ास तौर पे नेगेटिविटी से, बुरे ख़यालात से, बुरी बातों से और उन बुरे लोगों से जिनकी नज़रें हमारे वतन पाकिस्तान की तरफ हैं। आज हमारे साथ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे वैसे हम पूरे रमज़ानुल मुबारक जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं। आज वतन अज़ीज़ के हवाले से कुछ आप हमें अगर बयान करें। अली भाई, मैं ये जनाब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। हमें सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर इन कौमियत से निकल करके एक पाकिस्तानी बनना होगा। हम ये जो अपने मसाले की तकसीम कर रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए बड़ा अलमिया है। बल्कि हम ये कह दें कि किसी को तुम छेड़ो मत और अपना अकीदा और मसलक छोड़ो मत। जो आप जिस पे है उस पे आप डटे रहें। जो दूसरा अपना कर रहा है, अगर उसकी इस्लाह कोई ऐसी बुराई इज्तमाई देखते हैं तो उसको रोकें हाथ से, ज़बान से। वो रियासत की जिम्मेदारियां हैं जो मुझे अदा करनी है बाहैसियत के। वो सही तरीके से हमें पाकिस्तानी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चे बड़े प्यारे प्यारे आज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब दोनों आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तख्त पे मैं बैठा हुआ हूँ, कोई सल्तनत है जहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। मुफ्ती साहब किबला के पोते हैं माशाल्लाह, इनका पहला रोज़ा भी है। हम मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत मुबारक, यहाँ आपके रोज़ा पोते हैं खुशाई भी होगी। माशाल्लाह से। जी बिल्कुल पोते हैं। ये आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं आपकी टीम बच्चे के इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जैन और हसन, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन, ये ज़ैनुल आबिदीन है। दोनों हाथों से पकड़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह इधर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वहाँ कुर्सी पे रखो। ये जो है ना हिना, ये हिना बाजी के लिए है? हाँ, ये उसकी सीट पे जाएगा। ये हिना बाजी के लिए। हिना बाजी आप आ जाइए यहाँ पे प्लीज, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आ जाइए, आ ये आपकी जाइए। पूरी टीम के लिए भाई। ये आ जाइए, पूरी टीम के लिए गोली है। इधर रखो। ये बहुत पूरी टीम शुक्रिया के लिए। हसन, बहुत शुक्रिया। कौन से वाले हसन है, कौन से ज़ैनुल ये आबिदीन? ज़ैनुल आबिदीन है माशाल्लाह। और ये हसन है। माशाल्लाह, दोनों बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा मुफ्ती साहब की तरफ से हमें बड़ी दिल से खुशी। और अली भाई जैसे भी कहते हैं मुफ्ती नक्शबंदी जो हैं वो हमारे हर दिल अजीज़ हैं और बेइंतहा हमने उनसे सीखा और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, अल्लामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा